विचारधारा के आधार पर, हम विरोध करते हैं नीतियों के आधार पर, हम विरोध करते हैं कार्यक्रमों के आधार पर। अलग अलग है, इख्तिलाफी विचारधारा है, अलग अलग नीतियां बनाती है सरकार, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। वो आलोचना प्रखर भी होती है, लेकिन प्रखर से प्रखर आलोचना भी भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे के व्यक्तिगत संबंधों में आड़े नहीं आती। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में आडवाणी जी से मैं मार्गदर्शन लेने जाती थी। वो हमेशा मुझे एक ही निर्देश देते थे, सदन की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा उन्होंने मुझे सुझाव दिया, और मैं आज इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष जो भूमिका में निभा सकी वो आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद के कारण निभा पाई। अध्यक्ष जी, अब हम चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव में जाते समय चाहिए तो यह था कि मैं विजयी भव का आशीर्वाद देती सबको, लेकिन वैसा करूंगी तो असत्य होगा। इसलिए मैं विजयी भव का आशीर्वाद तो नहीं दे पा रही, लेकिन यशस्वी भव का आशीर्वाद सबको दूंगी। मैं चाहूंगी कि यशस्विता से हम सब चुनाव लड़ें, और आपकी तो मैं कायल हूं जिस बात को वासुदेव जी ने आज सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने निजी रूप में बहुत बार आपसे कहा है कि आपका स्वभाव और उस स्वभाव में क्रोध का ना आना इस सदन को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम सब यशस्विता से चुनाव लड़ें, जनता जिसे जिताकर भेजे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। विजय और पराजय का फैसला वही करती है। जिसे भी जिताकर भेजे, हम 16वीं लोकसभा में आए, और जो भूमिका हमें जनता दे उस भूमिका को हम इसी सौहार्द से निभाएं जिस सौहार्द से आज हम इस अंतिम सत्र के अंतिम दिन पर इस नोट के ऊपर जिस पर हम जा रहे हैं, इसी नोट पर हम वापस लौट करके आएं और बहुत सद्भावना और सौहार्द के साथ 16वीं लोकसभा चलाएं। यही शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। Madam Speaker, as we come to the end of the journey of the 15th Lok Sabha, I join all members of this august House to pay a tribute to the manner in which you have conducted our proceedings. Madam, in parliamentary life, there are bound to be differences among parties, but there must also be ways and means of finding pathways to bring a minimum amount of consistency and reconciliation so that the ship of the Indian state can move forward. And we have seen that on certain crucial matters, this House has the capacity, the will to rise above partisan strife and to find pathways of national reconciliation. The manner in which the state of Telangana is being born is yet another indication that this country is capable of taking some of the most difficult decisions without any rancor, without worrying too much about the pros and cons of things that do not matter, and we can take pride in the fact that the Telangana state, whose quest for being born was pending for the last 60 years, has ultimately seen the light of the day. Food Security Bill is yet another landmark legislation. It will create a ray of hope among those who are deprived sections of our community,
it will provide a ray of hope to encourage our farmers to produce more. Sharadji has described the manner in which the agricultural situation in our country has improved, and I compliment him for the manner in which he has guided the destiny of the agriculture ministry. And obviously, all members of the House have played a very important role in bringing that outcome about. Madam, we are now entering a phase where the people of India will once again have an opportunity to assess, to pass their judgment on performance of government, weaknesses of our government, the achievements of the government, and it is in that process that once again a new sense of consensus will emerge, which will carry our country to new pathways. I thank all honorable members of the House. I thank the Leader of the Opposition. I thank my colleague Shinde ji, who as Leader of the House has performed his duties with superb aplomb, and I wish all members of this august House my best wishes, and let us hope that out of this strife, out of this tensionful atmosphere which prevailed sometime, there will be birth of a new atmosphere of hope. And with these words, I conclude my remarks by once again thanking you, Madam Speaker, for the manner, the grace with which you have conducted our proceedings. Thank you. सम्मानित सदस्यगण, 15वीं लोकसभा का सत्रावसान होने जा रहा है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो स्वभावतः विगत 5 वर्षों की स्मृतियाँ जीवंत हो उठी हैं। कितने ही ऐसे अवसर आए जो मिठास से भरे थे, मानो वसंत ऋतु आ गई हो, और फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह अग्नि परीक्षा की अनेकानेक घड़ियां आ जाया करती थी और धर्म संकट द्वार पर दस्तक देने लगते थे। पर हर बार मैंने, और मुझे लगता है हम सब ने, यह महसूस किया कि इस सदन के पास अथाह आंतरिक शक्ति है जो इसे चलाती है। इस पर कितने भी आघात क्यों न हो, इसकी शक्ति क्षीण नहीं होती, पर इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि हम इसे आहत करें। निस्संदेह यह शक्ति देश के सीधे सच्चे मेहनतकश लोगों से इस सदन को मिली है, जो हमारे लोकतंत्र को ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं। मैं उन्हें नमन करती हूँ। मेरे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि 3 जून 2009 को सभा ने सर्वसम्मति से मेरा चयन करके मुझे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सम्मान प्रदान किया। संविधान की गरिमा सदैव बनाए रखने का, अपने सम्मानित पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित नियमों और परिपाटियों के आधार पर निष्पक्षता से सभा का संचालन करने का गंभीर दायित्व मुझ पर था, जिसका मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार सदन के अंदर और बाहर हमेशा ध्यान रखा। लोगों की सामूहिक अभिलाषा को प्रतिबिंबित करने और उसकी नियति निर्धारित करने की जिम्मेदारी इस सदन को सौंपी गई है। यह तभी संभव है जब विभिन्न विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श हो तथा जनता के समग्र कल्याण के लिए कारगर कानून बने, विशेष रूप से तब जब ये मामले निर्धन और उपेक्षित वर्ग,
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालते हों। अतः मैंने सभी सदस्यों, विशेषकर प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों को अपने अपने मत व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज़ादी के बाद हमने समतामूलक समाज रचना को अपना राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे समाज में किसी प्रकार की गैर बराबरी न हो। हमारी संसद ने इसके लिए आवश्यक कानून भी बनाए, पर यह नितांत क्षोभकारक स्थिति है कि आज भी समाज में जातिगत भेदभाव और अत्याचार का विकराल रूप दिखाई देता है। शोषित, पीड़ित, वंचित लोग जीवन की त्रासदी का संताप झेल रहे हैं। अब इसका अंत होना ही चाहिए और संसद को ही ये करना होगा। इसी कारण इससे संबंधित चर्चा को मैंने सदैव प्राथमिकता दी। मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरोकारों को उत्साहपूर्वक उठाया। कभी कभी जब सभा में विभिन्न मतांतरों के साथ विचारोत्तेजक बहसें हुई और उनका कोई समाधान नजर नहीं आया, तब विकल्प निकालने के लिए मैंने विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत की। उन सभी ने मेरी दुविधा समझी और हम कई बार उपाय ढूंढने में सफल रहे, कई बार असफल भी हो गए। महिला सदस्यों की भागीदारी पहले से अपेक्षाकृत अधिक है। उनमें से कई विदुषी हैं, कुशाग्र मेधा की धनी हैं और देश में उनकी अपनी पहचान और सम्मान है। पर मुझे संतोष तभी होता जब महिलाओं की संख्या कहीं अधिक होती। लोग मुझे महिलाओं से पक्षपात करने के लिए दोषी ठहराते हैं, जो मैं गर्व से स्वीकार करती हूँ। दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के पश्चात सभा ने एक आवाज में इस हृदयद्रावक घटना की भर्त्सना की तथा शीघ्र ही एक नया कानून बनाकर स्वयं को समय की कसौटी पर खरा सिद्ध किया। मुझे सदन को ये सूचित करना है कि लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों को लिंग निरपेक्ष बनाकर हमने एक उल्लेखनीय कदम उठाया है। आज तक विधानों में केवल पुरुषवाची शब्दों का प्रयोग होता आया था, पर लोकसभा के नियमों में ऐसे शब्दों का प्रयोग अब से होगा जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हों। ये भारत में अपनी तरह की एक नई पहल है और मुझे विश्वास है कि इसका व्यापक रूप से अनुकरण किया जाएगा। पूर्व परंपरा के अनुसार लोकसभा सचिवालय 15वीं लोकसभा और संसदीय समितियों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण देते हुए एक स्मारिका प्रकाशित करेगा। तथापि मैं संक्षेप में कुछ मुख्य कार्यों और विशेष घटनाओं के बारे में बताना चाहूंगी। इस लोकसभा की अवधि में मैंने अविलंबनीय मामलों पर 2 स्थगन प्रस्तावों की अनुमति दी। संसद सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल के बाद और उस दिन की बैठक समाप्त होने के समय तत्काल निपटाए जाने वाले लोक महत्व के 3,316 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 4,019 मामले उठाए। 37 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए गए। मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 598 वक्तव्य दिए, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य भी शामिल हैं। 6,778 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 650 प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया। मैंने छोटे बड़े अलग अलग दलों के सदस्यों को प्रश्न पूछने का भरसक मौका दिया। शेष तारांकित प्रश्नों और 73,160
अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए। 7 आधे घंटे की चर्चाएं भी की गई। 15वीं लोकसभा ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक 2013, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष विधेयक 2012, खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक 2012, दंड विधि संशोधन विधेयक 2013, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार विधेयक 2013, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण विधेयक 2010, कंपनी विधेयक 2012 में संशोधन सहित 181 विधेयक पारित किए गए। गैर सरकारी सदस्यों के 372 विधेयक पुनः स्थापित किए गए। महत्वपूर्ण विषयों पर 10 गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प भी प्रस्तुत किए गए। कई कार्यविधि संबंधी सुधार करके सभा की प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया। सदस्यों को बकाया अनुदानों की उन मांगों पर जिन पर सभा में चर्चा नहीं की गई थी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों और अध्यक्ष के निर्देशों में संशोधन करके प्रश्नकाल को सुकर बनाया गया। इसी प्रकार शून्य प्रहर में मामले उठाने की एक नई पद्धति शुरू की गई। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने संबंधी प्रणाली में भी बदलाव किया गया। हमारी संसदीय समितियों ने सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की बड़ी एकाग्रता से समीक्षा की। 2 नई समितियां, पहली, लोकसभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति तथा दूसरी, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति गठित की गई। समितियों ने नियमित रूप से बैठकें की, विभिन्न वर्गों के लोगों से मशविरा करने के लिए देश के अनेक स्थानों की यात्रा कर अपनी सिफारिशें दी। लोकसभा की स्थायी समितियों ने 652 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। समितियों की कार्यप्रणाली में परिवर्तन किए गए। पहले, संसदीय समितियों के दौरों के समय स्थानीय सांसदों को उनकी बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जाता था। उनके योगदान के महत्व को समझते हुए अब उन्हें आमंत्रित किया जाता है। हमारे सदस्य लोगों की समस्याएं समझते हैं, फिर भी अपनी जानकारी को निरंतर बढ़ाना उनके लिए आवश्यक है। उनकी सहायता के लिए 3 अतिरिक्त संसदीय मंच, पहला आपदा प्रबंधन, दूसरा दस्तकार और शिल्पकार तथा तीसरा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य स्थापित किए गए। ये मंच सदस्यों को किसी विशिष्ट विषय और उसके दूरगामी प्रभाव पर सलाह मशविरा करने का अवसर प्रदान करते हैं। इन मंचों में समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुई तथा उपयुक्त सुझाव उभर कर सामने आए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संसद भवन एक ऐतिहासिक इमारत है। इस अनोखे और भव्य भवन के वास्तुशिल्प को हूबहू बनाए रखने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। यह समिति इसकी मजबूती, विकास और सौंदर्य से जुड़े प्रश्नों पर परामर्श देती है। हमने कार्बन उत्सर्जन कम लाने के उद्देश्य सौर पैनल स्थापित किए हैं। परिसर में पॉलीथीन का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारा कार्य, और आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं और साथ ही साथ मीरा कुमार भी धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं लोकसभा।
डिजिटलीकरण किया जा रहा है। हमारे उद्यान में लगे पुराने विशाल वृक्षों पर खास तवज्जो दी जा रही है और पिछले 5 वर्षों में देश के कई लुप्तप्राय वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये हमारा अभिनव प्रयत्न होगा। 13 मई 2012 को हमने विशेष बैठक बुलाकर अपनी संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाई। लोकतंत्र को देशवासियों ने आत्मसात कर लिया है, उन्होंने ही इसे प्राणवान बनाया है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के सभी हितधारक, विशेष रूप से युवा और बच्चे, संसद को नज़दीक से देखें, इसे समझें, इसमें विश्वास करें। मैं स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को संसद आने के लिए निमंत्रित करती रही हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिपुर और अन्य राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों के स्कूली बच्चे संसद भवन देखने आए। ये बच्चे मुझसे हमारी संसदीय प्रणाली के बारे में ऐसे प्रश्न पूछते थे कि मुझे उनके वृहद ज्ञान पर विस्मय भी होता था और अभिमान